Students. So the last test which you had given was the biology mock test, which was around of 30 minutes and it was comprising of 30 questions. So I'm making a small video in which we are discussing the answers to those questions so that you can figure out have you done in this test, have you performed it correctly or not. See, first step is the correct sequence of anaerobic respiration. We know that anaerobic respiration means in absence of oxygen, and it is in this case it is happening in yeast. So glucose का conversion होना pyruvate में, this step always occurs in the cytoplasm, and for this step no oxygen is required. And conversion of glucose to pyruvate is called as glycolysis. Once pyruvate has been formed, if it is being broken down in absence of oxygen, then it will be broken down in the cytoplasm only. So the correct answer to this question will be D part. Okay. Second part, in which part of the alimentary canal food is finally digested? Small intestine. Choose the correct path of the urine in our body. We know that urine flows from the kidney to the ureters, and ureters store it in the urinary bladder, and from urinary bladder it goes out through urethra. So first is kidney, ureter, urinary bladder and urethra. So C is the correct option. Lack of oxygen in muscles often leads to cramps among cricketers. These result due to the conversion of pyruvate to lactic acid. Rings of cartilage present in the throat ensure that air passage does not collapse. The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called as peristaltic movement. Normal blood pressure is 120 by 80. One cell thick blood vessels are called as capillaries. During favorable conditions, amoeba reproduces by binary fission. Which part of the alimentary canal receives bile from the liver? It is small intestine. Vegetatively propagated plants. जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स होते हैं, देखिए हमने ये जैसे नीचे वाला हिस्सा लिया, इस पे ऐसे कट लगाया और इस पे एक और प्लांट हमने लगा दिया. अब जो ये प्लांट आपने लगाया, इससे नए प्लांट्स बनेंगे, राइट? तो उन नए प्लांट्स को बनने में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना, सो इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन where the new offsprings which will be formed will be genetically similar. Now, how the movement of sucrose is a sugar, in phloem takes place initially. It occurs with the help of ATP molecules. दो pink colored flowers, ये दोनों कह रहा है ना two pink colored, that means both of them will be, if they will be crossed, that means it is the case of self pollination. और अगर दोनों पिंक है तो दोनों पिंक के होने की वजह से वो सारे फिर पिंक आने चाहिए थे, इसका मतलब ये प्योर पिंक नहीं है, हाइब्रिड पिंक है, राइट? इट विल बी लाइक दिस, having a genotype like this. Now you will be confused that how can a genotype over here be pink, because R stands for red and small r stands for white. But this phenomena in genetics is called as incomplete dominance. Incomplete dominance means when one gene is not capable enough to dominate the other gene. So what happens, ये जो R है ना, ये complete dominant नहीं है, इस वजह से ये कैपिटल R और स्मॉल r के इंट्रैक्शन की वजह से ना तो रेड आता है ना वाइट आता है, बल्कि एक इंटरमीडिएट कलर आता है, दैट इज पिंक. तो जो पेरेंट जनरेशन थी वो दोनों के दोनों पिंक थी, मगर प्योर पिंक नहीं थी, वो ऐसी पिंक थी. अब आप खुद देखिए, जब इनको आप क्रॉस करवाओगे तो क्रॉस कराते वक्त यहाँ दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, और एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर. जब पहले कैपिटल आर के साथ टकराएगा तो बनेगा कैपिटल आर जो कि रेड बनेगा. अगर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ टकराया तो फिर से वही प्रोजेनी पेरेंटल जनरेशन की पिंक. इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल आर से टकराएगा, फिर से पिंक.
और स्मॉल आर से टकराएगा, ये बनेगा वाइट। इसीलिए जो पिंक कलर्ड फ्लावर्स को क्रॉस करवाया गया था, इट इज बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको ऐसा रिजल्ट आएगा। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। वेजिटेटिवली प्रोपगेशन में क्या होता है, नए प्लांट्स बनते हैं, लेकिन किससे? या तो स्टेम से, या तो रूट से, या तो लीफ से। तो ये ऑप्शन आएगा। पोटैटो अंडरग्राउंड जरूर उगता है, लेकिन वो एक स्टेम है। क्यों? क्योंकि पोटैटो के ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड उस जगह को बोलते हैं जहां से ब्रांचेस अराइज होती है। तो अगर यहाँ ये नोड है तो ये भी नोड होगा। दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। इसीलिए जिस चीज पे भी नोड और इंटरनोड हो उसको स्टेम कहते हैं। तो पोटैटो में प्रोपगेशन थ्रू स्टेम होती है। राइजोपस इज अ फंजाई। ओके, तो ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा, जिसको हम अक्सर लावा कहते हैं कि रोटी पे लावा चढ़ा है। तो वो रोटी पे जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पहले उसके बनते हैं, कॉटनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम हाइफे कहते हैं। उन्हीं हाइफे के ऊपर ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं। The flower of hibiscus plant is a bisexual plant. Mustard plant is also a bisexual plant. Pisum sativum is also a bisexual plant. जबकि पपाया और वाटरमेलन दे आर यूनिसेक्सुअल। फ्लावर के अंदर इनमें से कौन सा वर्ल सेंटर पे होता है? तो वो कार्पल है, क्योंकि कार्पल कंप्राइज ऑफ थ्री पार्ट्स। अपर पार्ट इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी। तो बाकी सराउंड कर रहे होते हैं उसको ऐसे स्टेमेंस। ठीक है, तो सेंटर पे जो पार्ट होता है उसको हम इन ऑप्शंस में कार्पल ही कहेंगे। सीड के अंदर एक चीज होती है जो उसका फ्यूचर प्लांट है, तो वो क्या होता है? एम्ब्रियो। प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक, जब ये बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, उस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ओवरी से एग्स का रिलीज होना, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। एडल्सेंस के दौरान जब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम, यानी उस पीरियड को क्या कहते हैं? उस पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं। बिकॉज प्यूबर्टी इज डिफाइंड एज दैट एज वेयर सेक्सुअल ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? वो फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। Along the path of vast difference, the secretion of which gland provides nutrition to the sperms? वो है seminal vesicle, क्योंकि seminal vesicle की secretion में ही मिलता है fructose. Fructose is a sugar, Fructose, fructose। जो ये बच्चा एम्ब्रियो जो होता है ह्यूमन के अंदर, यानी मदर के यूट्रस में, उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है। उस स्पेशल टिश्यू को हम प्लेसेंटा कहते हैं। I have told this multiple times. Suppose this is a membrane, and inside this membrane there will be a baby. Let us suppose this is baby, a comma shaped, और ये उसके साथ जुड़ा हुआ umbilical cord, और ये umbilical cord से ऐसे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा के बीच में यहाँ से मदर का टिश्यू होता है, तो placenta derives nutrition from the mother's blood, and through umbilical cord it supplies to the baby. तो प्लेसेंटा ही है जो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेके आता है और बेबी को सप्लाई करता है थ्रू अम्बेलिकल कॉर्ड, और अम्बेलिकल कॉर्ड बच्चे के इस नाफ के साथ जुड़ा होता है। Which among the following diseases is not sexually transmitted? Syphilis is also sexually transmitted. HIV/AIDS is also there. Gonorrhea is also there. Hepatitis B is also there. But इसने simply hepatitis लिखा है, तो इसके हिसाब से आंसर ये आएगा। This will be the answer. Which of the following method of contraception protects from acquiring sexually transmitted disease? इसमें condom आएगा because it's a barrier method. ये पेनिस से निकलने वाली सिक्रीशंस को वेजेना में ड्रॉप होने नहीं देगा, यानी कि अगर वेजेनल इन्फेक्शन होगा वो पेनिस पे नहीं हो सकता, क्योंकि उस पे कॉन्डम लगा है। ह्यूमन मेल्स में टेस्टी स्क्रॉटम के अंदर होते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन द
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए टेम्परेचर चाहिए ना कम, इसलिए टेस्टिस स्क्रोटम में होते हैं। ब्रायोफाइलम को अगर आपने देखा होगा उस पर ऐसा लीफ होता है, तो उसके लीफ के इन्हीं नॉचेस में एक छोटा सा बड होता है, और अगर हम लीफ का टुकड़ा नीचे ज़मीन में उगाएंगे तो उसी बड से वो बड मैच्योर होके नया प्लांट बनाएगा। इसका मतलब ब्रायोफाइलम में हम प्रोपगेशन कर सकते हैं थ्रू लीफ। So these were the answers of these 30 questions. So I hope you got the correct ones. If anyone is having any doubts, still he can contact me on my WhatsApp number. So I will explain or clarify that answer. See you in the next video.